Chapter number 1, The Living World of 11th NCRT. This chapter we are starting, and this is the very first chapter of our 11th NCRT textbook and the first chapter of the NEET syllabus. And Unit 1 and Unit 2 are remaining from your entire syllabus. So, in Unit 1, we have to study 4 chapters, and these 4 chapters, they are the living world, biological classification, plant kingdom, animal kingdom. So actually in this unit we are going to study the entire taxonomy part. So the first chapter is very general chapter, and in the second chapter, in the classification part, we will study the most accepted 5 kingdom classification system, and especially we will study the plant kingdom and animal kingdom as the separate chapter. So the first chapter, the living world, this is a very general chapter. We are going to study the characteristic features of the living being and which of the characters are the defining features of the living organisms. We will study in this chapter. Then a brief account is given on the diversity in the living world, means what are the different number of species, what is the approximate number of species are present on the earth. These things we will study. Then we will study the nomenclature system, the accepted nomenclature system, binomial nomenclature system we will study, and we study the various taxonomic categories, the obligate categories of the taxonomy, and few taxonomical aids. So in this way we will study this chapter. Normally in the competitive exam, including the NEET exam, one or maximum 2 questions are asked from this particular chapter. One question is compulsorily asked every year, but sometime there may be 2 questions from the same chapter. So now we are starting the first chapter, the living world. Okay, so we will study with the help of the PowerPoint presentation. I have summarized each and every topic, and I have first picked out the core points from the whole chapter. Then those core points are written on the slide. So we will study with the help of the slide, and simultaneously I will explain the points also. So first of all, the first topic is the characteristic features of living organisms. मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसकी बेस पर हम उनको लिविंग बोल सकते हैं. वैसे तो लिविंग और नॉन लिविंग में जैसे ही हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो हमको समझ में आ जाता है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या जो चीज़ है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है. बट स्टिल फॉर थेरोटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर सम पॉइंट्स गिवन which are the features of the living organism. So these different features of living organisms, they are the growth, reproduction, metabolism, cellular organization, and consciousness. So these 5 features, they are given in our NCERT textbook. So I have written here. So these are the 5 basic features which are present in living being. Apart from these 5 features, requirement of energy, homeostasis, that is the phenomenon in which the organism maintain a constant internal environment, metabolism, then disposal of their waste material, healing power, healing and repairing power, variation, adaptation, their lifespan, death, all these are the features of the living organism. बट इतने सारे फीचर्स यहाँ नहीं दिए हुए हैं, तो मैंने सिर्फ ऐसे ही उसको ओरली बोल दिया है.
जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हमको पढ़ना है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं. वी विल स्टडी ईच ऑफ दीज फीचर्स इन डिटेल एंड रिमेंबर वन थिंग, we will identify the defining feature of the living organism also. जो फीचर्स यहाँ हम स्टडी करेंगे, ये 5 फीचर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, इसमें हम लोग जो है वो एक चीज़ को और ढूंढेंगे कि इनमें से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफाइनिंग फीचर कौन से हैं. तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि डिफाइनिंग फीचर का क्राइटेरिया क्या है. A defining feature is that feature which is present exclusively in all living organism. One thing, it should not be present in any non-living thing. मतलब पहला क्राइटेरिया ये है कि डिफाइनिंग फीचर वो फीचर होता है जो सारे के सारे लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट रहना चाहिए. मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए जिसके अंदर वो फीचर मिसिंग हो. ये पहला क्राइटेरिया है. द सेकेंड क्राइटेरिया इज दैट इट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन एनी नॉन लिविंग थिंग. मतलब कि वो फीचर जो है वो किसी गैर जानदार में यानी नॉन लिविंग थिंग में प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए. तो ऐसा फीचर ये 5 में से हम ढूंढेंगे, तो वो रहेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर. सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया कि 5 लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो जनरल फीचर हैं ये कौन कौन से हैं. अब इनकी मीनिंग और इनके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग आगे की स्लाइड में देखते हैं. सो द फर्स्ट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ द ग्रोथ. सो ग्रोथ जो है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं. तो ग्रोथ की डेफिनेशन बहुत ही जनरल डेफिनेशन है. एक्चुअली यू आर ऑल नीट स्टूडेंट एंड यू आर इंटेलेक्चुअल पर्सन्स. तो ग्रोथ जो है ये तो कई बार पढ़ा होगा और इसकी टेक्निकल डेफिनेशन भी आपको जो है पता ही होगी. सो ग्रोथ किसको बोलते हैं. सो ग्रोथ जो होता है इट इज़ द इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास. इरिवर्सिबल है, इंक्रीज है, मास में इंक्रीज मतलब कि बॉडी वेट में इंक्रीज. तो ये जो इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास जो लिया जाता है, ये जो डेफिनेशन ली जाती है, दिस डेफिनेशन इट इज़ फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए है. लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी साइज़ को तो नहीं बढ़ा सकते. जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टन्स हैं, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह जो है, ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. इनके अंदर ग्रोथ का मतलब क्या है, ये अपनी साइज़ को तो नहीं बढ़ाएंगे. अगर इनके अंदर मास इंक्रीज़ होने लग जाए या इनके अंदर जो है इनकी साइज़ बढ़ने लग जाए तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि हमको जो है ये नेकेड आई से दिखना शुरू हो जाएंगे. मतलब हम बैठे हुए हैं और हमको दिख रहा है कि हमारे बाजू में जो है वो अमीबा आ गया है रेंगते हुए, पैरामीशियम आ गया है, यूग्लिना आ गया है अपने फ्लैजिला को हिलाते हुए. तो हम जो है वो बात करेंगे, वो देखो यूग्लिना आ गया, वो देखो पैरामीशियम वहाँ पर बैठा हुआ है, वो देखो अमीबा वहाँ उड़ रहा है. तो ऐसा तो हम देखते नहीं है कभी. बैक्टीरिया जो है वो भी हमको नेकेड आई से नज़र नहीं आते हैं. बट स्टिल दीज ऑल आर प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट. हमारे इन्वायरमेंट में तो ये सारे के सारे प्रेजेंट हैं. और ये जो है इंक्रीज इन मास जो है ये क्राइटेरिया रिफ़र करवाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए. वहीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो होती है उनके इंक्रीज इन नंबर से. उनके अंदर नंबर इंक्रीज होता है. तो नंबर का इंक्रीज होना फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मास या साइज़ का इंक्रीज होना, ऐसा इंक्रीज जो इरिवर्सिबल हो, मतलब जो वापस रिटर्न पीछे ना आए, ये फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं. तो ये मैं इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग वे में मैंने बता दिया ताकि पेपर में जो है वो कंफ्यूज करने के लिए अक्सर क्वेश्चन आ जाता है. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंक्रीज इन नंबर से होती है. एंड दिस ग्रोथ इट ऑकर्स ऑब्वियसली बाय देयर सेल डिवीज़न. ये उनके सेल डिवीज़न से होती है. फिर ग्रोथ जो होती है वो 2 टाइप की होती है. एक होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरी होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ. तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है ये होती है बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, यानी बॉडी के ऊपर से कोई मटेरियल जो है वो जमा होना.
देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, नाउ सपोज दिस इज एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब इसके ऊपर जो है वो कोई सब्सटेंस जो है वो ऐड होता जा रहा है। तो सपोज कर लो यहाँ पर जो है इसके ऊपर कोई सब्सटेंस ऐसे, ये इसकी सरफेस के ऊपर कोई सब्सटेंस ऐसे जमा होता जा रहा है, तो कुछ दिनों के बाद में इसकी साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगी, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा और इसका वेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इंक्रीज़ इन साइज़ तो हो गया, इंक्रीज़ इन मास बोलो या इंक्रीज़ इन साइज़ बोलो, ये तो हो गया। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये लिविंग हो जाएगा। हो सकता है कि ये कोई माउंटेन का पार्ट हो सकता है ये कोई पत्थर हो, या हो सकता है ये कोई लकड़ी का टुकड़ा हो जिसके ऊपर अलगी ग्रो हो जाए, या जिसके ऊपर जो है कुछ ऊपर से मटेरियल आकर के डिपॉजिट हो जाए, तो साइज़ तो बढ़ गई, ग्रोथ हो गई। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये लिविंग हो गया। तो यहाँ पर ग्रोथ हो रही है लेकिन बाहर से मटेरियल ऐड होने से हो रही है। तो ऐसी ग्रोथ को हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो इसको कहा जाएगा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और इसी को नीट वाली टर्म में या थोड़ा एडिशनली अगर हम लोग देखें तो इसी को कहते हैं हम लोग एक्रीशन। वैसे ये एक बार जो है वो AIPMT में पूछा है, एक्रीशन, ऊपर से मटेरियल का डिपॉजिट होना। एक्रीशन का वर्ड तो नहीं दिया है NCERT में, लेकिन एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल दिया हुआ है सरफेस पर। ऐसे ही जो लिविंग, ये जो फीचर है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इन एक्सट्रिंसिक टाइप का जो ग्रोथ है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में होता है। जबकि लिविंग थिंग्स के अंदर जो ग्रोथ होती है, लिविंग थिंग्स में होने वाली जो ग्रोथ होती है वो उनके इंटरनल, मतलब सेल्स लिविंग है तो सेल्स के बने हुए रहेंगे, तो वो सेल डिवीज़न से होती है, तो वो इंटरनली ऐड होते हैं और उसी को हम कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ, या उसी के लिए टेक्निकल जो टर्म है इसको कहा जाता है इंटूसेप्शन। लिख देता हूँ मैं, इंटूसेप्शन, इसको कहते हैं इंटूसेप्शन। यहाँ डबल C है इसके अंदर S की जगह पर, ओके मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ। सो इट इज़ कॉल्ड इंटूसेप्शन इसको। सो समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ क्या होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर ग्रोथ को होने के लिए कुछ फीचर्स ज़रूरी हैं। कुछ फीचर्स का मतलब कुछ कंडीशन ज़रूरी हैं, मतलब फेवरेबल कंडीशन जब होती है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो होते हैं। अब ग्रोथ में ही हम लोग जो है वो प्लांट की ग्रोथ और एनिमल्स की ग्रोथ को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पैरेलल। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो उनके स्पेसिफिक पार्ट्स में होती है जिनको हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक पार्ट्स। जैसे उनके अपाइकल्स, रूट अपाइकल्स होते हैं, शूट अपाइकल्स होते हैं, लेटरल बर्ड्स होते हैं, अपाइकल बर्ड्स होते हैं, जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आपको पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, मैडम पढ़ाएंगे आपको वो वाला यूनिट। तो उसके अंदर वहाँ पे जो ग्रोथ है वो उन पर्टिकुलर पार्ट्स में होती है। वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंटिन्यूसली रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को जो है वो ओपन माना जाता है, मतलब कंटिन्यूस ग्रोथ माना जाता है। वेयर एज इन एनिमल द ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन पार्ट्स, सर्टेन पार्ट्स के अलावा सर्टेन एज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ पर्टिकुलर एज तक के जो है एनिमल्स के अंदर ग्रोथ होती है। जैसे एनिमल्स की हाइट है, ह्यूमन की हाइट है, एक पर्टिकुलर एज तक बढ़ती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है इंक्रीज इन नंबर ग्रोथ का क्राइटेरिया है, ऊपर हमने देख लिया। सेल डिवीज़न जो है ग्रोथ के साथ साथ में इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो होता है हीलिंग करना, मतलब लॉस्ट सेल्स को रिपेयर करना, रीजनरेट करना। फिर यहाँ पर बताया गया नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रोथ शो करते हैं बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। जैसे एग्जांपल में है माउंटेन है, सैंड मोन्ड्स हैं, बोल्डर्स हैं, बोल्डर्स यानी बड़े बड़े जो पत्थर के चट्टानें जो होती हैं वो हैं। तो इसलिए ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग थिंग में भी प्रेजेंट है। मैंने क्या कहा था क्राइटेरिया, कि नॉन लिविंग थिंग में प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए, सारे के सारे लिविंग में प्रेजेंट रहना चाहिए। तो सभी लिविंग में तो प्रेजेंट है लेकिन कुछ नॉन लिविंग में भी है बाय डेफिनेशन, तो इसलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द ग्रोथ। ये हो गया ग्रोथ के बारे में। फिर नेक्स्ट जो फीचर है वो है रिप्रोडक्शन का फीचर। So reproduction is the next characteristic feature of living organism. We will check
that whether the reproduction is the defining feature of living being or not. So first we will define what is mean by reproduction, then we will see its base criteria whether it is a living defining feature or not. So what is mean by reproduction? Organisms have this capacity to produce their own kind of organism, progeny organism. This is called as the reproduction. Definition बहुत कॉमन है, तो इसके लिए डेफिनेशन को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए मैंने डिफाइन कर दिया है. पूरा यूनिट है रिप्रोडक्शन का, आपने पढ़ा, उसके टाइप भी आपने देखे हैं, आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बेसिक डिफरेंस भी आपको पता है. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया हैं, अदर प्रोटिस्टेंस हैं, क्लेमाइडोमोनास नाम की यूनिसेलुलर अलगी है, ईस्ट है, इनके अंदर जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, ये दोनों जो है वो सेम फीचर है. मतलब इनके अंदर जो है सेल डिवीज़न से इनका रिप्रोडक्शन भी होता है और सेल डिवीज़न से इनका नंबर भी बढ़ रहा है. तो इसके लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दीज आर द एक्सक्लूसिव और यू कैन से द म्यूचुअली इंक्लूसिव इनके लिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए. मतलब दे आर बोथ आर द सेम. जबकि हायर ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो अलग है, ग्रोथ जो है वो अलग होता है. सो यहाँ पर इसीलिए इट इज़ अनक्लियर विद द यूसेज ऑफ टू टर्म, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए दो टर्म अलग अलग यूज़ करना जो है वो थोड़ा अनक्लियर होता है. मतलब उनके अंदर जो ग्रोथ है वही उनका रिप्रोडक्शन है, या जो रिप्रोडक्शन है वही उनका ग्रोथ का मीन्स भी है. जबकि अगर इसको हम लोग जो है वो डिफाइनिंग फीचर के क्राइटेरिया के ऊपर अगर चेक करते हैं, सो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए. बहुत सारे जो है वो ह्यूमन कपल्स रहते हैं जो इनफर्टाइल रहते हैं, मतलब कि जो अपनी प्रोजेनी को जन्म नहीं दे पाते. तो ये फीचर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है, लेकिन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर ये फीचर देखने को नहीं मिलता है. तो इसका ये मतलब नहीं है कि म्यूल, स्टेराइल बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन जो है ये नॉन लिविंग हो जाएंगे. दे आर स्टिल लिविंग बिकॉज द अदर फीचर्स आर प्रेजेंट, बट दिस फीचर is not exclusively shown by all living beings. So we can say that reproduction is also not a defining feature of living organism. जबकि रिप्रोडक्शन का जो फिनोमिनन है ये हमको नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर तो ज़रा भी देखने को नहीं मिलता है, बट लिविंग बींग्स के अंदर है, लेकिन सारे के सारे लिविंग में नहीं है. तो इसलिए इसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते हैं. तो यहाँ पर जो है वो आसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक डायग्राम भी आपके रेफरेंस के लिए दिया हुआ है. आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे फिजन दिया है, बी वाले में हाइड्रा के अंदर बडिंग है, और स्वीट पोटैटो का जो रूट से जो प्रोपेगेशन होता है वो है, और राइट हैंड साइड पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन के रिस्पेक्ट में एग्जांपल दिया है. तो ये सब तो आप रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में पूरी डिटेल के साथ में स्टडी कर चुके हैं. सो नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर, जो कि है मेटाबॉलिज्म. सो मेटाबॉलिज्म डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग मेटाबॉलिज्म को? नाउ मेटाबॉलिज्म जो है इट इज़ डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट द लेवल ऑफ सेल. हमारे सेल में होने वाले सभी केमिकल रिएक्शंस, उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. अपना जो सेल है वो साइटोप्लाज्म का बना हुआ है, कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी वहाँ पर हैं. तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं, जिनको कहा जाता है बायो मॉलिक्यूल. ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं, और ये सब जो है वो एक कंटिन्यूसली एक दूसरे के अंदर आपस में रिएक्ट करते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं. तो इनका कन्वर्जन कंटिन्यूसली होता रहता है. इन्हीं रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस. सो सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल. अब कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल का तो बना हुआ नहीं होता, तो इसके लिए मेटाबॉलिज्म उसके अंदर अब्सेंट होता है. नाउ मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है दे कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी, ह्यूमन बॉडी के या एनिमल या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर, इसको सेल फ्री सिस्टम में, जैसे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर, या इसको हम कहेंगे इन विट्रो, इसको जो है हम लोग परफॉर्म करवा सकते हैं. जैसे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन है, सलाइवरी अमाइलेज जो है वो निकाल लो, या सलाइवा ले लो एनिमल का, और टेस्ट ट्यूब के अंदर स्टार्च ले लो और उसके अंदर वो डाल दो, तो वो डाइसेक्राइड में कन्वर्ट होगा. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेस्ट ट्यूब जो है वो लिविंग हो गया.
वहाँ पर लिविंग के जैसा एक रिएक्शन हो रहा है। तो हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को इन विट्रो जो है डेमोन्स्ट्रेट करवा सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के जो है वो दो टाइप होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब ये जो दोनों टाइप हैं ये भी आपको मालूम ही है दोनों टाइप। कैटाबॉलिज्म जिसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है वो ब्रेक डाउन होकर सिंपल में कन्वर्ट होता, और एनाबॉलिज्म जिसके अंदर सिंपल कंपोनेंट्स या सिंपल कंपाउंड्स जुड़ के कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं। सो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एग्जांपल दी हुई है। सो इन फोटोसिंथेसिस यू कैन सी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दे कंबाइन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इससे जो है ये बन रहा है C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है। तो ये फोटोसिंथेसिस की जो है वो कॉमन इक्वेशन है, और नीट वालों को कॉमन इक्वेशन बताना आप लोगों की बेइज्जती हो जाएगी क्योंकि इतनी कॉमन चीज़ है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। सो आपको पता ही है, मुझसे ज़्यादा ही मालूम है। सो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है इसमें एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज, और दो सिंपल कंपाउंड यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो रहे हैं। तो ये है एनाबॉलिक टाइप का रिएक्शन। वहीं उसके अपोजिट जो एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसके अंदर ऑक्सीजन रिक्वायर होती है फॉर ब्रेक डाउन ऑफ द सेम ग्लूकोज। सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन। पूरा चैप्टर पढ़ा है आपने रेस्पिरेशन का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और लास्ट में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं। तो ये है एग्जाम्पल कैटाबॉलिक रिएक्शन की, कॉमन एग्जाम्पल है। देन द नेक्स्ट फीचर आफ्टर मेटाबॉलिज्म इज़ द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस किसको बोलते हैं? कॉन्शियसनेस मतलब कि होशमंदी, होश में रहना, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है वो हमको पता होना। तो इसी फीचर को जो है वो इर्रिटेबिलिटी भी कहा जाता है। सो दिस फीचर इज़ ऑल्सो नोन एज इर्रिटेबिलिटी, इट इज़ कॉल्ड एज इर्रिटेबिलिटी। सो क्या है ये इरिटेबिलिटी? मतलब कि ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को रिस्पॉन्स करना, यानी उसके लिए कोई ख़ास जवाबी अमल देना। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में होने वाले जो स्टिमुलाई हैं, जो फिज़िकल या केमिकल या बायोलॉजिकल ओरिजिन के जो चेंजेस हैं उनको पिकअप करते हैं और उसको रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एनिमल्स में भी, प्लांट्स के अंदर भी वेरियस सेंस ऑर्गन्स होते हैं। प्लांट्स के अंदर जैसे टेंड्रिल्स होते हैं, कभी किसी सॉलिड सपोर्ट के कांटेक्ट में आते साथ ही उसके ऊपर वो वायर नुमा या स्प्रिंग नुमा ऐसा लपेट लेते हैं, उससे वो अपने आप को सपोर्ट करते हैं। प्लांट्स जो है वो लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर वाटर टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं। एनिमल्स जो है वो पॉल्यूटेंट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। फोटो पीरियड आपने स्टडी किया है विथ रिस्पेक्ट टू, यानी कि लाइट का ड्यूरेशन फ्लावरिंग के ऊपर जो है वो इफेक्ट डालता है। इसके अंदर आपने पढ़ा होगा लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, ये सब। तो ये फोटो पीरियड है, ये क्या है? रिस्पॉन्स करना हुआ इन्वायरमेंट को। एनिमल्स जो हैं जैसे कुछ सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं, प्लांट है, एनिमल है, कुछ कंटिन्यूस ब्रीडर्स भी होते हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग जो होता है वो इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उससे तो अवेयर होता ही है, साथ साथ में उसकी अपनी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है उस चीज़ से भी अवेयर होता है। तो इसको कहा जाता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ह्यूमन बीइंग का, ओनली ह्यूमन बीइंग का, जबकि कॉन्शियसनेस जो है ये इन जनरल सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। तो इसलिए हम लोग जो है वो कॉन्शियसनेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर मानते हैं। सो ये है अपना थर्ड फीचर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले फीचर पर। ओके, यहाँ तक तो हमने जो है जो कॉमन फीचर्स थे वो तो हमने देख लिए हैं। और भी कुछ फीचर्स है जो मैंने शुरू में ओरली बोले थे, जैसे मेटाबॉलिज्म के साथ साथ जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, हीलिंग एंड रिपेयर पावर होता है, साथ ही होम्योस्टेसिस एक बड़ा फीचर है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक पर्टिकुलर लेवल पर मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो ये कुछ ऐसे एडिशनल फीचर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और वैसे अपने एनसीईआरटी में तो यही कॉमन जितने मैंने बताया उतने फीचर दिए हुए थे, तो वहाँ तक तो हमने देख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली सेकेंड टॉपिक है इस चैप्टर का। सो डाइवर्सिटी किसको कहते हैं? डाइवर्सिटी यानी कि
अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंट रहना पूरे वर्ल्ड में। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमको जो है वो बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और इसी के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी के लिए हम लोग जो है वो टर्म बायोडाइवर्सिटी यूज़ करते हैं। इस नाम का एक चैप्टर भी आपने जो है वो स्टडी किया है। तो डाइवर्सिटी विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग बीइंग, इट इज़ द बायोडाइवर्सिटी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम के लेवल पर भी डाइवर्सिटी होती है, जेनेटिक लेवल पर डाइवर्सिटी होती है, स्पेसीज़ लेवल पर डाइवर्सिटी होती है। तो ये जो अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटीज़ हैं, ये हमने जो है वो इकोलॉजी वाले यूनिट में स्टडी किया है उसमें। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो डाइवर्सिटीज़ हैं उसमें जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी है, स्पेसीज़ लेवल डाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम के लेवल की डाइवर्सिटी है, ये सब है। तो अब तक का जो एस्टिमेट है नंबर ऑफ नोन स्पेसीज़ का, वो कहीं एक आइडिया, एक अंदाजे के मुताबिक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पेसीज़ हैं अब तक के जो कि डिस्कवर्ड हैं। अब ज़रूरत क्या है क्लासिफिकेशन की, ये भी एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि क्यों क्लासीफाई करना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, 1.7 1.8 मिलियन, और ये जो एस्टीमेट दिया हुआ है ये एक एक्सेप्टेड एस्टीमेट है। रॉबर्ट मे नाम का साइंटिस्ट था, लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाते हैं नंबर ऑफ स्पेसीज़, ग्लोबल स्पेसीज़ को, वो पहुंचती है 25 से 30 मिलियन। मतलब अगर मान लो कि 25-30 मिलियन स्पेसीज़ अगर वर्ल्ड में हैं, तो उसमें से अगर 1.7 ही डिस्कवर्ड है या 1.5 डिस्कवर्ड है तो बहुत कम डिस्कवर्ड है। बहुत सारी स्पेसीज़ ऐसी हैं जो अपने डिस्कवर होने से पहले ही जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं। तो ज़रूरत क्या है क्लासिफिकेशन की? ज़रूरत यही है कि इतनी बड़ी तादाद में ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम लोग एक साथ में एज अ होल स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरत होती है कि उनको अलग अलग जो है वो कैटेगरीज़ में बांटा जाए, डिफरेंट क्लास में, डिफरेंट फैमिलीज़ में, ऑर्डर के हिसाब से उनको बांटा जाए, तो हम उनको स्टडी कर पाएंगे। उनके नाम याद रखना, उनके फीचर्स याद रखना आसान होगा। तो ये है, इसलिए सामने आती है एक जो साइंस की ब्रांच है वो होती है सिस्टमेटिक्स, जिसके अंदर हम फीचर्स को भी स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल इंटरनल फीचर्स को भी, और साथ में उनको नाम देते हैं जिसको कहा जाता है नोमेनक्लेचर। सो नोमेनक्लेचर जो है इट इज़ द साइंस और आर्ट एंड साइंस ऑफ गिविंग अ पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम टू ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स। सभी नोन ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम असाइन करना, इसको कहा जाता है नोमेनक्लेचर। नोमा मतलब होता है नेम। सो नोमेनक्लेचर यहाँ पर, अब ये जो नोमेनक्लेचर है, ये नोमेनक्लेचर प्लांट्स का जो है कुछ क्राइटेरिया पर बेस्ड होता है, एनिमल्स का कुछ उनके क्राइटेरिया पर बेस्ड होता है। तो प्लांट्स को नोमेनक्लेट करने वाली जो अथॉरिटी है वो है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और ऐसे ही एनिमल्स को नोमेनक्लेट करने वाली जो अथॉरिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICBN जो है ये इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर भी यूज़ होता है। तो ICBN दोनों का शॉर्ट फॉर्म सेम बनता है, तो अक्सर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर के लिए BA लिख देते हैं, ICB_AN, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये सब जो है ये सिस्टमेटिक्स के अंडर में, या साइंस ऑफ सिस्टमेटिक जो है जिसको लीनियस ने इंट्रोड्यूस किया था, उसके अंडर में वर्क करने वाली ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो साइंटिफिक नेम जो है ये इंश्योर करता है कि हर ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम असाइन किया जाए, और वो नाम जो है वो यूनिवर्सल हो, पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से उस ऑर्गेनिज्म को जाना जाए, और उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो, मतलब कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सो नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं अभी। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो एक्सेप्टेड तरीका है, मेथड है नोमेनक्लेट करने का, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। सो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इट वाज डेवलप्ड इन 1753। ईयर नहीं याद रखेंगे तो चल जाएगा। 1753 में इसको डेवलप किया था एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट था जिसका नाम है कार्ल लीनियस, और उसको डेवलप करने के बाद में उसने अपना नाम जो है वो चेंज कर लिया था, कैरोलस लीनियस। इसी को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। उसने जो है वो अलग अलग बुक्स लिखी थी, और उसमें जो है जो उस वक्त तक के नोन स्पेसीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल थे उनको नोमेनक्लेट किया था। तो जो बुक्स उसने लिखी थी उसमें एक कुछ जो फेमस बुक हैं वो है स्पेसीज़ प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम,
और इसी तरह से स्पेसीज प्लांटेरम के अंदर उसने सारे प्लांट को नोमेनक्लेट किया था। जेनेरा प्लांटेरम के अंदर उसने मैक्सिमम एनिमल्स को नोमेनक्लेट किया था। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है, इसको कैरोलस लीनियस ने अपनी एक और फेमस बुक जिसके अंदर प्लांट के और एनिमल के कंबाइंड नेम्स थे, वो बुक थी सिस्टेमा नेचुरे। उसके अंदर इसको लिखा है सारे नाम को जो उस वक्त तक के नोन थे। उस वक्त तक 7300 हाँ यस, लगभग 7300 स्पेसीज और नियर अबाउट 1000 जनेरा उस वक्त तक नोन थे। तो ज़्यादा डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो जितने नोन थे उनको ही उसने जो है वहाँ पे नोमेनक्लेट करके लिखा था। बस उसने कुछ रूल्स बनाए थे, उन रूल्स को जो है वो आज भी फॉलो किया जाता है। तो बाइनोमियल नेम्स जो होते हैं वो 2 वर्ड वाले नेम होते हैं, और ये 2 वर्ड वाले नेम से पहले पॉलिनोमियल नेम्स का चलन था, जो कि जिनको याद रख पाना जो है वो बहुत मुश्किल होता था। हालांकि वो भी साइंटिफिक नेम थे, पॉलिनोमियल जो नेम होते थे मतलब मल्टीपल नेम, तो उसमें जो है वो प्लांट का पूरा मॉर्फोलॉजी, उसका पूरा एक्सटर्नल फीचर और कुछ इंटरनल फीचर को लेकर के नाम लिखे जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, उसका नाम है क्राइसोफाइलम फोलिस ओवेलिस सुप्रीम ग्लैब्रिस पैरेलल स्ट्राइटिस सप्टस टोमेटो सोनिटाइडिस। अब ये इतना बड़ा नाम है, मालवेसी फैमिली का एक प्लांट है ये। तो अब इतना बड़ा नाम जो है अगर आपको बोलूं कि याद करो तो याद करना तो मुश्किल होगा आपके लिए, तो 2 वर्ड वाले नाम याद नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो इतने बड़े बड़े लोग जो है वो नाम याद नहीं रख पाते, याद नहीं रख सकते थे, इवन साइंटिस्ट भी याद नहीं रख पाते थे। तो ये बंदा जो था हमारा कैरोलस लीनियस, इसने इसने जो है ये 2 नाम वाला सिस्टम ईजाद किया, इंट्रोड्यूस किया, जिसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। तो अब इसमें पहला जो पार्ट होता है नाम का वो होता है जेनेरिक नेम, और स्पेसीज दूसरा वाला जो होता है। स्पेसीज एपिथेट भी कहते हैं सेकेंड वाले को, और जेनेरिक नेम पहले वाले को। तो जो जेनेरिक नेम होता है वो सब्सटेंसिव होता है, मतलब वो कोई नाउन होता है, और जो स्पेसीज नेम जो होता है वो नॉर्मली एडजेक्टिव होता है, यानी कोई फीचर को डिस्क्राइब करता है। तो इतना डीप में भी नहीं जाना है हमको, बस खाली ये याद रखना है पहला टुकड़ा जेनेरिक है, मतलब पहला एपिथेट जो है वो जेनेरिक है, दूसरा जो है स्पेसिफिक है। अब कुछ रूल्स हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, जो जनरल रूल्स हैं वो रूल्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो सारे के सारे जो नाम हैं वो लैटिन में होना चाहिए या कि फिर इटालिक लैंग्वेज में होना चाहिए, और उनको लिखा भी उसी फॉर्मेट में जाएगा। पहला जो है वो जीनस होगा, दूसरा जो है स्पेसीज होगा, ये हमने देख लिया। और अगर हम उनको हैंड रिटन लिख रहे हैं यानी हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और या कि अगर उनको प्रिंट कर रहे हैं तो इटालिक फॉन्ट में उनको प्रिंट करेंगे। अब इसमें जो जीनस का पहला लेटर होता है वो होना चाहिए कैपिटल, और स्पेसीज़ का जो पहला लेटर होता है वो होना चाहिए स्मॉल लेटर। तो स्पेसीज़ का पहला लेटर जो है वो स्मॉल होना चाहिए, और जीनस का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे मैंजीफेरा इंडिका बहुत पॉपुलर नेम है मैंगो का, तो उसमें मैंजीफेरा का एम जो है वो कैपिटल रहेगा, इंडिका का आई जो है वो स्मॉल रहेगा। वही एग्जांपल दी हुई है एनसीईआरटी में, पुरानी घिसी पिटी एग्जांपल, तो वही मैं बता दिया हूँ। और भी बहुत सारे नाम हैं साइंटिफिक नेम्स, लेकिन अभी इतने फास्ट वाले लेक्चर में उनको जो है वो डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टेक्सोनॉमी, आर्ट एंड साइंस ऑफ गिविंग नेम एंड क्लासीफाइंग द ऑर्गेनिज्म। मतलब हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कैसे करें, उनको नाम कैसे दें। नाम देना तो सीख लिया हमने टेक्सोनॉमी, इसके पहले नोमेनक्लेचर के अंदर, अब टेक्सोनॉमी हमको देखना है। तो टेक्सोनॉमी जो है ये क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्टेन फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोनों फीचर्स को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इवन उसके अंदर हम जो है वो सेल लेवल पर भी स्टडी कर लेते हैं कि सेलुलर फीचर क्या है, उनका हैबिटेट, इकोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं, ये सब कुछ। और ये सब जो है वो मॉडर्न टेक्सोनॉमी का पार्ट बनाते हैं। इसी को जो है वो नियो टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी या नियो टेक्सोनॉमी। तो ये सब मॉडर्न टेक्सोनॉमी का पार्ट है, जिसके अंदर जो है अब इसके अंदर फाइलोजेनी भी आ जाती है, क्रोमोसोमल लेवल पर जो है वो जा करके उसको स्टडी किया जाता है, क्लेडिस्टिक आ जाता है, बायोकेमिकल नेचर को भी ध्यान में रखा जाता है, फिजियोलॉजी को भी जो है वो ध्यान में रखते हैं, ये सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। तो फादर ऑफ सिस्टमेटिक्स जो है वो थे हमने कैरोलस लीनियस, जिन्होंने सिस्टमेटिक को स्टार्ट किया था। सिस्टेमा नेचुरे या टेक्सोनॉमी दोनों जो है वो कहीं कहीं
इंटरचेंजेबल टर्म्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, दोनों काफ़ी एक दूसरे से क्लोज हैं। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक्स की डेफिनेशन अलग से लिखी हुई है, जहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन देयर डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू अदर रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। तो इसके लिए जो है वो कुछ कैटेगरीज यूज़ की जाती हैं जिनको हम कहते हैं टेक्सा। और टेक्सा जो है ये एक ऑर्डर में लगाई, एक सीक्वेंस में लगाई जाती हैं, और जो सीक्वेंस होता है उसको कहा जाता है हेरारकी या हायरार्की, टेक्सोनोमिक हेरारकी। तो यहाँ पर अभी हमको टेक्सोनोमिक हेरारकी भी स्टडी करना है। ओके, तो सबसे पहले हम सबसे लोवेस्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा जो टेक्सोनोमिक हेरारकी की सीक्वेंस है, तो वो सीक्वेंस जो है उसमें आप चाहें तो अपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो है वो देख सकते हैं। जो सीक्वेंस है वो पूरी लिखी हुई है, पेज नंबर 10 पर लिखी हुई है। तो स्पेसीज़ लोएस्ट यूनिट से हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्पेसीज़ है, उसके ऊपर फिर जीनस है, फिर फैमिली है, फिर ऑर्डर है, फिर उसके बाद क्लास है, और उसके ऊपर फाइलम या प्लांट्स के लिए डिवीज़न है, और सबसे हाईएस्ट लेवल पर किंगडम है। कुछ ये जो कैटेगरीज होती हैं इनको हम ऑब्लिगेट कैटेगरीज कहते हैं, और कुछ और कैटेगरीज होती हैं जिनको इंटरमीडिएट कैटेगरीज कहते हैं। जैसे किंगडम के बाद में सब किंगडम हो सकता है, फाइलम के बाद में सब फाइलम, डिवीज़न के बाद सब डिवीज़न हो सकता है, क्लास के ऊपर सुपर क्लास हो सकती है, क्लास के नीचे इंफ्रा क्लास हो सकती है, सब क्लास हो सकती है, ऑर्डर के ऊपर सुपर ऑर्डर हो सकता है, उसके नीचे सब ऑर्डर हो सकता है, फैमिली के ऊपर सुपर फैमिली है, फैमिली फिर सब फैमिली हो सकती है, फिर जीनस के बाद में स्पेसीज़, स्पेसीज़ के बाद में जो है वो सब स्पेसीज़ हो सकती है। तो ऐसे कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज़ हैं, और फैमिली और जीनस के बीच में कहीं कहीं पर जो है वो ट्राइब लिखा जाता है, सीरीज़ लिखी जाती है प्लांट्स के केस में। तो ये सब जो है वो नॉन ऑब्लिगेट या के एक्सेसरी कैटेगरीज़ में आती हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऑब्लिगेट कैटेगरीज़ को स्टडी करने वाले हैं। सो पहले जो है हम देखते हैं सबसे लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड दिस लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है दिस इज़ द स्पेसीज़। तो स्पेसीज जो है ये लोवेस्ट यूनिट है। डेफिनेशन इसकी ये है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सम सिमिलैरिटीज इन देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट दे कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल प्रोजेनी। आपस में ब्रीड करना और फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप जिनके अंदर कुछ यकसानियत, कुछ सिमिलैरिटी पाई जाए, उनको कहा जाता है स्पेसीज़। उर्दू वाले इसको जो है वो नौ कहते हैं, नून वाव एन, अनवा इसी का प्लूरल है। तो डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस यहाँ पर डेफिनेशन में लिखी हुई है। सो दिस इज़ द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। Individual group of individual having fundamental similarities and successful reproduction takes place among themselves. तो distinct morphological difference there between two closely related species। ये जो कॉन्सेप्ट था स्पेसीज का, इसको अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने डिफाइन किया है, बट द मोस्ट लेटेस्ट एंड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज वाज गिवन बाय अ वेरी प्रोमिनेंट साइंटिस्ट नेम्ड अर्नस्ट मेयर, जिसका सबसे पहले पेज पर जो है फोटो बना हुआ है। डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी मानते हैं इसको, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। 3 बड़े बड़े जो है वो बायो के अवार्ड इसने जीते थे, तो इस बिना पर इसको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। अर्नस्ट मेयर इसने दी थी डेफिनेशन, जो मॉडर्न डेफिनेशन जो अभी मैंने बताई। अब जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखें स्पेसीज़ की, तो पैंथेरा टाइग्रिस में टाइग्रिस स्पेसीज़ है, पैंथेरा लियो में लियो है, सोलेनम ट्यूबेरोसम में ट्यूबेरोसम, सोलेनम निग्रम में निग्रम। तो पहला नाम जो है वो जीनस है, दूसरा वाला स्पेसीज़ का। तो इसमें टाइग्रिस, लियो, ट्यूबेरोसम, निग्रम ये सब स्पेसीज़ के एपिथेट हैं। ऐसे ही पैंथेरा, सोलेनम ये सब जो है वो जेनेरिक नेम है, जो कि इसके बाद का टैक्सा है। सो जीनस, एक जीनस के अंदर एक से ज़्यादा स्पेसीज़ आ सकती हैं। तो सिंगल जीनस, एक जीनस लिया तो उसके अंदर एक से ज़्यादा स्पेसीज़ भी पॉसिबली आती हैं, आ सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है स्पेसीज़ के बाद में जीनस। तो जीनस के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के जो है वो पैंथेरा के जीनस और उनके स्पेसीज़ दिखाए हुए हैं। सो जीनस जो है वो स्पेसीज़ का क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज़ का एक ग्रुप होता है। अब जैसे एग्जांपल में हमने देखा है यहाँ इसके पहले वाले में भी पैंथेरा,
पैंथेरा के अंदर लियो, पैंथेरा पार्डस जिसको लेपार्ड बोलते हैं, और पैंथेरा टाइग्रिस। तो तीनों के जो है यहाँ पर फोटो बने हुए हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ये पैंथेरा लियो है, मिडल में जो है ये पैंथेरा पार्डस है, और तीसरे नंबर यानी राइट हैंड साइड पर पैंथेरा टाइग्रिस है। तो ये सब 3 अलग अलग स्पेसीज़ हैं, बट ये एक ही जीनस पैंथेरा में आ रही हैं। ऐसे प्लांट्स के लिए पीछे वाले स्लाइड पर जो है वो डायग्राम दिया हुआ था, सोलेनम ट्यूबेरोसम और सोलेनम मेलॉन्जेना यानी ब्रिंजल। ये जो दोनों हैं, ये मतलब पोटैटो और ब्रिंजल, ये दोनों जो है वो सोलेनम नाम के जेनेरा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी पर हम जा रहे हैं, फैमिली। उसके बाद में सो फैमिली वैसे ही डिफाइन करेंगे। फैमिली जो है वो किसके बाद में आ रही है? जीनस के बाद में। तो क्लोजली रिलेटेड जेनेरा का जो ग्रुप होगा, जिनके अंदर कुछ सिमिलरिटी हो और कुछ डिफरेंसेस भी हो। जैसे जैसे हम स्पेसीज से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमको जो है वो डिफरेंसेस बढ़ते हुए चले जाएंगे, नंबर भी बढ़ेगा ऑर्गेनिजम्स का, और मतलब डाइवर्सिटी बढ़ती हुई चली जाएगी। सो फैमिली ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा। एग्जाम्पल याद रखना ज़रूरी है, जैसे फैमिली सोलेनेसी है और इसके अंदर सोलेनम और पेटूनिया और दतूरा, ये 3 जेनेरा के प्लांट्स इसमें आते हैं। ऐसी एनिमल के साइड से फैमिली जो है वो फेलिडी है, और इसके अंदर पैंथेरा मतलब लायन, टाइगर, लेपर्ड, और फेलिस यानी कैट फैमिली, ये 2 इसमें आते हैं। तो प्लांट फैमिली का जो नाम है वो CEAE पर एंड होता है ये, और एनिमल फैमिली जो है वो आमतौर से AE पर एंड होती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है ऑर्डर। सो ऑर्डर जो है प्लांट के अंदर कभी कभी इनको जो है वो कोहर्ट भी कहा जाता है। ये फैमिलीज़ का असेंबलेज होते हैं जिसके अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, यानी सिमिलरिटीज़ कम होती हैं, यहाँ से डिफरेंसेस शार्पली बढ़ना शुरू होते हैं। अब प्लांट फैमिली जैसे कन्वोलुलेसी की एग्जांपल दी हुई है, ये इसमें एक ऑर्डर आ जाता है पॉलीमोनियल्स, ये सारे के सारे फैमिली कन्वोलुलेसी में आ जाते हैं। फिर ऐसे ही एनिमल के अंदर फैमिली फेलिडी और कैनिडी, ये 2 फैमिलीज़ जो है वो एक सिंगल ऑर्डर के अंदर इंक्लूडेड है, और ये है ऑर्डर कार्निवोरा। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पर हम लोग आते हैं, इट इज़ द क्लास। सो क्लास इज़ द नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। नाउ क्लास जो डेफिनेशन है इसमें, इट इंक्लूड्स ऑल द रिलेटेड ऑर्डर, मतलब बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर या नियरली सिमिलर कैरेक्टर रखने वाले ऑर्डर्स को मिला करके बन जाती है एक क्लास। जैसे क्लास मेमेलिया, तो क्लास मेमेलिया जो है ये इंक्लूड करती है ऑर्डर प्राइमेटा को, जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स ये सब आ जाते हैं, और कार्निवोरा, ये 2 ऑर्डर को मिला के मतलब प्राइमेटा कार्निवोरा को मिला के क्लास मेमेलिया बनती है। और इसके अलावा मेमेलिया में और भी बहुत सारे ऑर्डर हैं, नियर अबाउट 18 to 19 डिफरेंट ऑर्डर्स हैं इसके अंदर। फिर ऐसे ही अगर हम लोग प्लांट की तरफ आएँ तो डायकोटिलिडोनी क्लास, इसके अंदर पॉलीमोनियल्स और सेपिंडेल यानी मैंगो वाला जो ऑर्डर है ये इसमें आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है डिवीज़न और फाइलम। तो प्लांट्स के लिए हम लोग जो है वो डिवीज़न यूज़ करते हैं, और एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है फाइलम। प्लांट के लिए हम लोग डिवीज़न यूज़ करेंगे और एनिमल्स के लिए फाइलम। दोनों सेम रैंक पर है, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएँ तो सेकंड नंबर पर है, और नीचे की से ऊपर की तरफ जाएँ तो सेकंड लास्ट है। इट इंक्लूड्स क्लासेस विथ वेरी फ्यू सिमिलरिटीज़। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जैसे हम लोग किंगडम की तरफ आएंगे सिमिलरिटीज़ जो है वो कम होती चली जाती, तो यहाँ पे सिमिलरिटीज़ काफ़ी कम रहती है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग कॉर्डेटा की एग्जांपल, जिसमें पाइसेस हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स सब आते हैं। इनके पास में जो कॉमन फीचर है वो है इनका नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो, न्यूरल सिस्टम और वेंट्रल सर्कुलेटरी सिस्टम, कुछ फीचर्स हैं, हम लोग देखेंगे किंगडम एनिमेलिया में इन सबको। डिवीज़न प्लांट के लिए जैसे एंजियोस्पर्मी, इसमें क्लास डायकॉट और क्लास मोनोकॉट दोनों इंक्लूड करके बन जाता है डिवीज़न एंजियोस्पर्मी। नेक्स्ट है द हाईएस्ट कैटेगरी, इट इज़ द किंगडम। तो ये हाईएस्ट कैटेगरी है, सबसे बड़ी यूनिट है। हाँ, अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट और द हाईएस्ट कैटेगरी,
मतलब इनमें से सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी, और किंगडम के साथ साथ में डोमेन भी अगर दिया हुआ है तो किंगडम से बड़ा जो यूनिट है वो है डोमेन, लेकिन अगर डोमेन का ऑप्शन नहीं है तो फिर किंगडम को ही माना जाएगा। तो डोमेन सिस्टम जो है वो तो कार्ल वोइज नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इंट्रोड्यूस किया था। 3 डोमेन्स में ऑर्गेनिजम्स को उसने डिस्क्राइब किया था, बांटा था। तो खैर वहाँ तक तो हम अभी नहीं जा रहे हैं। सो यहाँ पे हाईएस्ट कैटेगरी है टेक्सोनॉमी की। जैसे किंगडम के लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो बहुत फेमस है। RH विटेकर का दिया हुआ जो सिस्टम है उसी का यहाँ पर फ्लो चार्ट भी बना हुआ है। अब इसके अंदर जो है वो आप देखेंगे तो 6 किंगडम दिखाया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर आर्की बैक्टीरिया इंक्लूड कर दिया है। तो ये जो 6 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसको कार्ल वोइज नाम के साइंटिस्ट ने ऐड किया था। अदरवाइज़ जो है यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, ये दोनों, मतलब ये दोनों जो ग्रुप है ये दोनों जो है वो इंक्लूडेड है मोनेरा के अंदर। तो इसको हम लोग जो है वो कैसे सेकेंड चैप्टर में हमको स्टडी करना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सब। तो यहाँ पर किंगडम जो है इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर हमने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को स्टडी कर लिया। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे टेक्सोनॉमिक एड। मतलब कि टेक्सोनॉमी को स्टडी करने में कुछ चीज़ें, कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ प्लेसेस हो सकते हैं जो मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। इनको कहा जाता है टेक्सोनॉमिक एड। सो टेक्सोनॉमिक एड ये क्या है? टेक्सोनॉमिक एड देखते हैं पहले। सो टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ ऑफ वेरियस स्पेसीज, प्लांट्स, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म, जिनकी वजह से हमारे बायो रिसोर्स और हमारी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होती है, इनको स्टडी करने के लिए रिक्वायर होता है कि हम इनको करेक्टली क्लासीफाई करें, आइडेंटिफाई करके इनको नोमेनक्लेट करें। तो इसके लिए कुछ एड्स हैं, कुछ हेल्पफुल चीज़ें हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाती हैं, पहले यहाँ पे उनको लिस्ट आउट किया गया है। जैसे हर्बेरियम है, बॉटेनिकल गार्डन्स हैं, म्यूज़ियम है, जूलॉजिकल पार्क हैं, कैटलॉग्स हैं, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आइडेंटिफिकेशन कीज़ होती हैं। तो इनको हम लोग जो है बारी बारी देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट है हर्बेरियम। हर्बेरियम जो है ये क्या होता है? इट इज़ द ड्राइड एंड प्रिजर्व पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के लिए करते हैं इसको स्टोर हाउस बना लेते हैं बाद में। मतलब प्लांट का कोई पार्ट ले लेते हैं, अगर बहुत बड़ा प्लांट है तो, छोटा प्लांट है तो पूरा होल प्लांट ले लेते हैं। पहले उसको ड्राई करते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं, ऊपर से वेट रख करके उसका पूरा जो मॉइस्चर है उसको निकाल देते हैं। फिर उसको जो है वो ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर ले लेते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो पूरा जो कलेक्शन होता है, अब उस पर डिस्क्रिप्शन में जो है वो क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। डेट लिखते हैं, कब उसको कलेक्ट किया गया, प्लेस लिखते हैं कहाँ से कलेक्ट किया गया है, लोकल नेम और बॉटनिकल नेम और कलेक्टर का नेम, यानी उसको कलेक्ट करने वाले का नाम, ये सब कुछ लिखते हैं और उसको जो है वो कबर्ड्स वगैरह में रख देते हैं। तो पूरा एक कलेक्शन तैयार हो जाता है। और ये बनाते हैं क्विक रेफरल सिस्टम फॉर टेक्सोनॉमिक स्टडीज़, यानी हमारी टेक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए क्विक रेफरेंस अगर चाहिए तो हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें इसके जो है वो अलग अलग टाइप होती हैं स्पेसिमेंस की, जो हर्बेरिया शीट होती हैं। जैसे होलो टाइप है, मतलब ओरिजिनल, मतलब जो सबसे पहला हर्बेरियम जिस साइंटिस्ट ने बनाया होगा ओरिजिनल बिल्कुल, उसको कहा जाएगा होलो टाइप। अब उसके जैसे दूसरे कलेक्शन अगर कुछ दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने कलेक्ट किए होंगे तो उनको कहा जाएगा आइसो टाइप। और कभी ऐसा होता है कि होलो टाइप या आइसो टाइप जो है वो मिसिंग हो जाता है, तो उनसे मिलते जुलते जो है वो कुछ दूसरे शीट्स तैयार किए जाते हैं और डिस्क्रिप्शन को लिखा जाता है, तो उसको पैरा टाइप कहते हैं। ऐसे ही अलग अलग जो है वो टाइप्स रहते हैं। ये सब जो है ये हर्बेरिया के डिफरेंट टाइप्स के नाम हैं। नेक्स्ट है बॉटेनिकल गार्डन। मैं इनको हाईलाइट करना भूल गया हूँ पीपीटी में। तो बॉटनिकल गार्डन्स, नो बॉटनिकल गार्डन्स जो होते हैं दीज आर द कलेक्टिंग ऑफ लिविंग स्पेसिमेन। यहाँ पर जो है वो ड्राइड और प्रिजर्व्ड पार्ट थे प्लांट्स के, यहाँ पे लिविंग स्पेसिमेन होते हैं बॉटनिकल गार्डन में प्लांट के। तो प्लांट को जो है ग्रो किया जाता है पर्पसफुली ह्यूमन डोमेस्टिकेशन के अंडर में, और उनको जो है फिर लेबल करते हैं, एक पर्टिकुलर ऐसा रेक्टेंगुलर तख्ती जैसा लगा देते हैं, उसके ऊपर उसके नाम वगैरह लिख दिए जाते हैं। नेक्स्ट है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम जो होता है ये एनिमल्स का कलेक्शन होता है। एनिमल्स को हम लोग जो है कलेक्ट करके या तो
एज अ होल पूरा कंप्लीट एनिमल जो है उसको प्रिजर्व करके रख लेते हैं फॉर्मेलिन वगैरह के अंदर, और या कि फिर जो है उसके अंदर का जो विसरल मास है उसको निकाल देते हैं और उसके अंदर हस्क भर देते हैं, यानी भूसा वगैरह भर के उसको उसकी ओरिजिनल शेप में बना करके रखा जाता है। तो म्यूज़ियम जो होता है ये एनिमल्स के लिए प्रीफर किया जाता है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ में अक्सर वहाँ पर उनका पर्सनल म्यूज़ियम और बॉटनिकल गार्डन वगैरह भी रहता है। बहुत बड़े एनिमल्स हैं और उनका स्पेसिमेन मिला हुआ है तो उसके स्पेसिमेन को भी जो है वो स्केलेटन मिला हुआ है तो स्केलेटन को भी प्रिजर्व कर लेते हैं। और बड़े एनिमल्स हैं तो उनको कलेक्ट करने के बाद में उनको मार करके और उनको स्टफ़ कर लेते हैं, मतलब उनको पिन वगैरह के ज़रिए किसी सॉलिड पीछे के सपोर्ट के ऊपर उसको स्टफिंग कर लेते हैं, मतलब पिनिंग कर लेते हैं उसको। तो इस तरह से ये म्यूज़ियम तैयार होता है। कुछ कॉमन म्यूज़ियम्स जो हैं, जैसे मुंबई में जो है वो नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है, नेशनल म्यूज़ियम है नेचुरल हिस्ट्री का न्यू दिल्ली में। इसी तरह से अमेरिकन म्यूज़ियम है यूएसए के अंदर, बर्ड कलेक्शन म्यूज़ियम है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। तो ये कुछ कॉमन म्यूज़ियम्स हैं। फिर नेक्स्ट एड पर हम लोग आते हैं, वो है जूलॉजिकल पार्क। सो जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं यहाँ पर एनिमल्स को जो है वो कैप्टिविटी में रखते हैं, मतलब ह्यूमन के डोमेस्टिकेशन के अंडर में उनको कैप्टिविटी में रखा जाता है। जूलॉजिकल पार्क एक्स सीटू कंजर्वेशन का एक मेथड है, ये भी आपने स्टडी किया है इकोलॉजी यूनिट में। तो जो ख़ास मकसद होता है वो है एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करना, उनकी फूड हैबिट को स्टडी करना, और जो कंडीशन उनको प्रोवाइड की जाती है वो बिल्कुल नेचुरल कंडीशन जैसी उनके हैबिटेट में होती है, बिल्कुल उसी तरह की कंडीशन उनको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमिक एड, इट इज़ द की। सो की जो है ये टेक्सोनॉमिक एड है जो कि यूज़ की जाती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। मतलब यहाँ पर जो है की के अंदर दो अल्टरनेटिव्स होते हैं। कोई नया ऑर्गेनिज्म अगर डिस्कवर हुआ तो उसके जो है वो दो अल्टरनेटिव्स होते हैं। अब जो अल्टरनेटिव के लिए जो हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उस स्टेटमेंट को कहा जाता है लीड। उसके अंदर जो स्टेटमेंट होता है ईच स्टेटमेंट ऑफ की, हर स्टेटमेंट को उसमें उसको जो है हम लीड कहते हैं। अब उसमें से जिस लीड का फीचर रिलेट हो रहा है उस लीड को फॉलो करते हुए हम आगे के फीचर्स को, आगे की सिमिलरिटीज़ को स्टडी करते हैं जो कि प्रीवियसली क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनसे रिलेट करके। तो यहाँ पर जो है वो बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम स्टडी करते हैं। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ तो सबसे पहले मान लो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो यही देखा जाएगा वेदर दैट ऑर्गेनिज्म इज़ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, तो यहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, लीड है, और ये दोनों को मिला करके जो बनता है उसको कहते हैं हम कपलेट। तो इस तरह से हर स्टेटमेंट जो है वो लीड होता है। अब इसमें सपोज कर लो वो ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर है तो यूनिसेलुलर वाला फीचर ढूंढेंगे उसके अंदर, वेदर दैट ऑर्गेनिज्म इज़ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। अगेन यहाँ पर दो अल्टरनेटिव आ गए तो वापस से ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो है एक लीड है, दोनों लीड की तरह है। अब सपोज कर लो जो है वो प्रोकैरियोट है तो इसका मतलब वो प्रोटिस्टा नहीं हो सकता, फंजाई नहीं हो सकता क्योंकि प्रोकैरियोट हो गया है। अब प्रोकैरियोट के फीचर्स उससे हम रिलेट करेंगे, वेदर दैट प्रोकैरियोट इज़ फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफिक। अगर फोटोसिंथेटिक है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम साइनोबैक्टीरिया की तरफ जा रहे हैं, और अगर नॉन फोटोसिंथेटिक है तो इसका मतलब हम लोग जो है वो बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है हर बार दो अल्टरनेटिव्स होते हैं। तो ये सबसे कॉमन की है जिसको कहा जाता है डायकोटोमस की, और ये एनालिटिकल नेचर की होती है। मतलब हम हर बार जो है जो कपलेट के अंदर जो लीड हैं उसमें हम एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के बेसिस पर फिर उसकी जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है उसको डिसाइड करते हैं। जैसे उसकी क्या जीनस हो सकती है, उसकी क्लास क्या हो सकती है, प्रोबेबल फैमिली क्या हो सकती है, ये सब चीज़ें हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं की से। सो टेक्सोनोमिक की के लिए यहाँ पर जो है बताया हुआ है कि ड्राई स्किन वाला एनिमल किस तरह से हम उसको प्रोबेबल क्लासीफाई करेंगे। तो देखिए ड्राई स्किन नो यस, अगर नो है तो सेलेमेंडर यानी एम्फीबियंस की तरफ चला गया, यस है तो
फिर देखा जाएगा कि उसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर हेयर प्रेजेंट नहीं है तो लिजार्ड की तरफ चल जाएगा, और अगर प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं जो है वो इस तरफ मैमल्स की लाइन की तरफ आएगा। तो इस तरह से हर बार जो है वो हर एक कपलेट के अंदर 2 लीड दिख रहे हैं, और एक लीड को पकड़ करके हम आगे क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। तो ये होती है टेक्सोनॉमिक की। सो यहाँ पर जो है हमने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और अब आपने देखा कि फर्स्ट चैप्टर जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना तो मैंने स्लाइड के ऊपर सारा कवर किया ही, बट एक्सप्लेनेशन के टाइम पर मैंने कुछ चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा भी बता दी हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली जो है दिस लेक्चर इज़ मीन फॉर द नीट स्टूडेंट्स। तो जो इम्पॉर्टेंट एडिशनल पार्ट्स थे वो मैंने ओरल एक्सप्लेनेशन के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू द टॉपिक, रिलेटेड विद द टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड जो चैप्टर होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसको स्टडी करेंगे।